हम लोग हैं इसरो के ऑफिशियल पेज पे और यहाँ है सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एक्सियम 4 विथ इंडियन एस्ट्रोनॉट एंड AXO-04 मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला ऑन बोर्ड स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू मॉडल। तो ये इसरो देखिए टू इसरो इज प्राउड टू अनाउंस सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एक्सियम 4। ये यूएसए सेंड किया गया और यहाँ पे कौन कौन है? क्रू इंक्लूड्स कमांडर पेगी वाइटसन, पायलट शुभांशु शुक्ला फ्रॉम इंडिया, मिशन स्पेशलिस्ट Shalwasuz Uznansky from Poland and Tibor Kapu from Hungary। यहाँ देखते हैं ये आपका इवेंट टाइम है। फॉलोइंग आर द इमेज ऑफ अबव इवेंट्स, हैचिंग एक्सपेरिमेंट इन प्रोग्रेस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्टेड विद ज्ञान यात्री गगनयान यात्री शुभांशु शुक्ला, orbiting altitude of 400 km, ISS travel at a speed of approximately 28,000 km per hour, completing orbit every 90 minutes। यहाँ देखते हैं हम लोग a suite of Indian scientific experiment is being conducted on board the International Space Station as a part of this mission, marking a significant contribution from India's research community to microgravity science। क्या है? Microgravity science। Other experiment will examine human interaction with electronic display in microgravity and the influence of microgravity on the growth and yield of food crops seeds। So again we are at ISRO SpaceX mission, ये ऑफिशियल पेज है और यहाँ देख सकते हैं कि while making a maneuver to reach 25 meter between satellite, the drift was found to be more than expected post non-visibility period. The planned docking of 9 January 2025 is postponed. Satellites are safe. SpaceX deployed successful separation of SpaceX satellites marks another milestone in India's space journey। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? The primary objective of SpaceX mission is to develop and demonstrate technology needed for rendezvous, docking and undocking of two small spacecraft SDX-01 which is a chaser and ये target in low earth orbit। ठीक है। secondary objective include demonstration of transfer electric power between docked spacecraft which is essential for future applications such as in space robotics, composite spacecraft control and payload operation after undocking। ये मिशन का देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पेस मिशन कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट और ये जो लॉन्च किया था ये था हमारा PSLV C60 independently and simultaneously into 470 circular orbit। यहाँ देखते हैं SpaceX मिशन जो है इज कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड मिशन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडियन in space docking using two small spacecraft launched by PSLV। This technology is essential for India's space ambitions such as Indian on Moon, a sample return from Moon, the building and operation of Bharatiya Antariksh Station। In space docking technology is essential when multiple rocket launches are required to achieve common mission objective। So this mission, India is marching towards becoming fourth country in the world to have space docking technology। तो हम लोग ये न्यूज पे आते हैं। ये 24 अक्टूबर का न्यूज है। 90% of India's is Gaganyaan development work done, ISRO chief। So Mr. Narayan has said that the crewed mission to launch the Indian astronaut into space will take place in कब 2027। Prior to that, ISRO will undertake 3 uncrewed mission। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 uncrewed जो मिशन है ये have to be accomplished। The first uncrewed mission with Himrad Biomitra is expected to take flight by the end of this year। We want to accomplish this Gaganyaan project envisages demonstration of human space flight capacity by launching a crew of 3 members to orbit 400 km 3 days। तो ये क्या है? 3 day mission है and bringing them back safely to Earth by landing in Indian sea water। On the NASA ISRO NISAR satellite launch 30 July 2025, Mr. Narayan said the satellite is healthy and it would be declared operational in another 10 to 15 days। अब यहाँ पे हमारा है NBS-02 satellite। On the NBS-02 satellite, we suffered a technical glitch as ISRO was unable to perform the intended orbit raising operation due to valve malfunction। The ISRO chairman said the NBS-02 satellite has gone to elliptical orbit and we could not take it to circular orbit because of a valve malfunction। The failure analysis committee has completed the investigation and zeroed down on the fault। The recommendation of the committee will be placed before the government। So we are at ISRO
ऑफिशियल पेज, और यहाँ पे हम देख सकते हैं गगनयान जो मिशन है, इज a project envisaged demonstration of human space flight capability by launching crew of 3 members to an orbit of 400 km for a 3-day mission. This is a 3-day mission and bring them back safely to Earth by landing in Indian seawater. The project is accomplished through an optimal strategy by considering in-house expertise, experience of Indian industry, intellectual capabilities of Indian academia and research institution, along with cutting-edge technology available with international agency. अब ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम ये सब प्रोवाइड करना है, स्पेस क्रू, इमरजेंसी स्पेस, ये सारा चीज, ट्रेनिंग, रिकवरी, ये सारा कुछ होगा। अब यहाँ देखते हैं ह्यूमन रिलेटेड LVM-3, तो इसमें जो यूज होने वाला है वो हमारा रॉकेट है, वो है LVM-3 और ह्यूमन रेटेड है। LVM-3 rocket, the well-proven and reliable heavy lift launcher of ISRO, is identified as a launch vehicle for गगनयान मिशन। It consists of solid stage, liquid stage and cryogenic stage। तो इस स्टेज को हम लोग समझते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेज। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितने स्टेज का है, तो ये है 3 स्टेज। All system in LVM-3 launch vehicle are reconfigured to meet human rating requirements, and pristine human rated LVM-3 HLVM-3 will be capable of launching orbital model to intended low Earth orbit of 400 km. Crew escape system इसके अंदर है, powered by set of quick acting high burn rate solid motors which ensure that crew model along with crew is taken to safe distance in case of any emergency either at launch pad or during its ascent phase। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि ह्यूमन सेफ्टी इज of paramount importance in Gaganyaan mission. In order to ensure the same, various new technology comprising of engineering system, human-centric system are being developed and realized, और इनका ट्रेनिंग भी किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये हमारे 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो कि जाने वाले हैं स्पेस में। ये है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला। तो ये हमारे शुभांशु शुक्ला जो एक्सियम 4 मिशन में भी अभी आए हैं होकर। फिर ये है ये हमारे बालकृष्ण नायर ये हैं, अंगद प्रताप एंड ये हमारे हैं अजीत कृष्णन। Popular, named after a Portuguese leader. एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस व्हिच ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया, तो उसमें आता है पपाया, पाइनएप्पल एंड गुआवा। जो अमरूद हम लोग देखते हैं, और पाइनएप्पल एंड पपाया, पपीता जो है, तो ये सारा इंडिया में किया गया था फ्रॉम Portuguese, with introduction happening primarily 16th and 17th century. They also played significant role in cultivating and popularizing other crops such as Alfonso mango, which are named after the Portuguese viceroy Alfonso de Albuquerque। तो ये देख सकते हैं fruit introduced by Portuguese। papaya, native to tropical Americas, introduced in 16th century। pineapple, ये साउथ अमेरिका का है, वो भी यही लोग लेके आए थे। गुआवा भी है, ये भी अमेरिका का है जो कि यहाँ पे आया। और अल्फांसो मैंगो। तो हम लोग आ चुके हैं अपने टाइम जोन वाले टॉपिक पे, और यहाँ हम लोग देखेंगे किस कंट्री के पास कितने टाइम जोन्स आते हैं। तो पीपल विल बी अमेज्ड टू नो दैट फ्रांस, उनके पास है 12 टाइम जोन। फिर है सबसे ज़्यादा फ्रांस के पास है, इतना छोटा कंट्री और इसके पास 12 है। फिर आता है रसिया है भी बड़ा कंट्री और इसके पास 11 टाइम जोन है। पर सेम यूएसए जो, उसके पास भी 11 टाइम जोन है। फिर अंटार्कटिका जो एज ए कॉन्टिनेंट हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे 9 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। ऑस्ट्रेलिया एक छोटा कंट्री है लेकिन उसके पास भी 9 टाइम जोन है। यूनाइटेड किंगडम ग्रीनविच टाइम जहाँ से क्रॉस करता है, लेकिन यहाँ भी आपका 9 टाइम जोन। फिर कनाडा पे आते हैं, इसके पास 6 टाइम जोन है। डेनमार्क के पास भी 5 है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो है एक्सटेंडेड टेरिटरी है, सिर्फ अपने एरिया तक नहीं है, ये बाहर भी जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ देखिए मेन टेरिटरी ऑफ डेनमार्क आपका ग्रीनलैंड है, फिर फरो आइलैंड है जो कि अंटार्कटिका, आपका अंटार्कटिका से करीब है। फिर ये देखिए मोस्ट ग्रीनलैंड इंक्लूडिंग इनहेबिटेड साउथ कोस्ट, तो ये हो गया। न्यूजीलैंड, ये भी बहुत छोटा कंट्री ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन इनके पास भी 5 टाइम जोन है। ब्राजील जो है बड़ा कंट्री है लेकिन इनके पास 4 टाइम जोन है। इंडिया के पास अपना सिर्फ 1 टाइम जोन है। मैक्सिको के पास भी 4 है। चिली के पास 3 है। इंडोनेशिया के पास 3 है। किराबाती जो आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड है, उनके पास 3 टाइम जोन है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC जो अफ्रीका में, उनके पास 2 टाइम जोन है। इक्वाडोर जो इक्वेटर पे लाई करता है, उनके पास 2 टाइम जोन है। फिर माइक्रोनेशिया है 2 है। कजाकिस्तान के पास 2 है। मंगोलिया में 2 है। पापुआ न्यू गिनी में 2 है। पोर्टुगल में 2 है। साउथ अफ्रीका में 2 है। स्पेन में 2 है। और इंडिया में ये बहुत बड़ा टॉपिक बनता है कि इंडिया जो कि इतना बड़ा एरिया है, फिर भी हम लोग इतना छोटा टाइम जोन, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम जोन क्यों रखा गया है? तो यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन के लिए रखा गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतना डाइवर्सिटी है। अगर टाइम जोन लाते हैं तो हम लोग एक सेपरेशन का भी फीलिंग आता है।
तो इस चीज को कंबाइन रखने के लिए हम लोगों को एक टाइम जोन गवर्नमेंट लेकर आई। लेकिन हमारे जो ईस्टर्न पार्ट के जो स्टेट्स है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे अरुणाचल में है 4 बजे ऑफिस खुलना पड़ जाता है, जो भी ऐसा है। और यहाँ पे जो है गुजरात है तो ये लेट तक चलता है। तो यहाँ पे हमेशा हमेशा ये डिबेट रहा है कि टाइम जोन रखा जाए, दो दो रखना चाहिए, क्योंकि इतने देखने के बाद इस माइंडसेट से तो हम लोग हट सकते हैं, क्योंकि अदर कंट्री मेंटेन कर रहे हैं इतना ज्यादा टाइम जोन। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 4 जो है ब्राजील से स्टार्ट होता है, 4 ब्राजील, मैक्सिको एंड चिली। और उसके ऊपर न्यूजीलैंड के पास भी 5 है, छोटा कंट्री है। डेनमार्क भी 5 है, कनाडा भी 6 है, यूके के भी 9 है, ऑस्ट्रेलिया 9 है, अंटार्कटिका 9 है, यूके यूएसए और रसिया 11 है। तो हम लोग आ चुके हैं एक अदर टॉपिक पे। ये टॉपिक है रिसोर्सेज एंड कंट्री ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बोस्टवाना, ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और दिस शेयर बाउंड्री विथ नामीबिया, जिम्बाब्वे, और ये शायद आपका साउथ अफ्रीका हो सकता है। तो हमें देखना है कि बोस्टवाना जो है वो किस चीज़ में रिच है। तो ये है डायमंड में, कोल में एंड कॉपर निकल में। एक और डाटा देखते हैं। बोस्टवाना डायमंड 92% एक्सपोर्ट फ्रॉम माइनिंग, गिनी इज फेमस फॉर गोल्ड, माली गोल्ड, बुर्किना फासो गोल्ड, सुरिनाम गोल्ड, जाम्बिया कॉपर, कॉन्गो कॉपर, मॉरिटानिया गोल्ड, गुयाना गोल्ड, किर्गिस्तान गोल्ड, एंड ये अगेन नामीबिया इज फॉर डायमंड। तो इस न्यूज को देखते हैं। इंडिया टू एक्सपोर्ट लिथियम, एक्सप्लोर लिथियम इन चिली। So Coal India Limited is planning to explore and extract lithium from salt flats area of flatland covered with layers of salt in Chile. The world's largest lithium reserve, 36%, and second largest gold producer. It contributes 36% to global trade. Chile is a part of lithium triangle along with Argentina and Bolivia. तो ये जो ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपका आता है अर्जेंटीना, ये है चिली, एंड दिस इज बोलिविया, और ये हमारा लिथियम ट्रायंगल। और ये कहाँ यूज होता है? हमारे फोन के बैटरी में सबसे ज्यादा यूजेस इनका दिखने को मिलता है, बैटरी ऑफ फोन्स। जो लिथियम है, लिथियम इज व्हाइट गोल्ड एंड वर्सटाइल एलिमेंट, रिचार्जेबल बैटरीज, सेरामिक्स, ग्लास, एल्यूमिनियम। और ये देख सकते हैं हम, चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना। और यहाँ देखिए अटाकामा डेजर्ट है, और ये लिथियम ट्रायंगल जिसको बोला जा रहा है, और यहाँ कोल इंडिया में भी एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ हम लोग आते हैं इंडोनेशिया पे, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। इंडोनेशिया इज रिच नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग कोल, निकल, गोल्ड, कॉपर, टिन, बॉक्साइट, इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल। ये देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल एंड कोल। So nickel, Indonesia holds sustainable share of world nickel reserve and mineral crucial for making stainless steel, including increasingly important for electric vehicle batteries. Coal, the country is leading a coal producer and has vast reserves. So we are at official site of PIB, और यहाँ पे हमारे पास है PIB का एक कटआउट जो है नेशनल रेल प्लान विजन 2030, और इससे अभी क्वेश्चन जो आया है 2025 में, तो उस इसका एक्सप्लेनेशन वो देख रहे हैं। इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया, और ये आपका है देखिए 2030 है। द प्लान इज टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। तो हम लोग के पास फ्यूचर रेडी रेलवे होगा। द एनआरपी इज एम टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन बोथ ऑपरेशनल कैपेसिटी एंड कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव टू इंक्रीज modal share of railway in freight to 45%. The objective of the plan is to create capacity ahead of demand, which in turn would also cater to future growth in demand right up to 2050, and also increase the modal share of railway to 45% in freight traffic. तो हम लोग जो गुड्स भेजते हैं उसमें हम लोग को 45% अपना लेकर जाना है, एंड टू कंटिन्यू टू सस्टेन इट फर्दर। अब की ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। तो की ऑब्जेक्टिव है फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन बोथ ऑपरेशनल कैपेसिटीज, एंड ये तो हम लोग देख चुके हैं। रिड्यूस ट्रांजिट टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये भेजने का जो होता है वो 50 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ाना है, और ट्रांजिट मतलब आप जो सम गुड्स भेज रहे हैं उसको इंक्रीज करना है, एवरेज स्पीड उसका। एज पार्ट ऑफ नेशनल रेल प्लान विजन 2024 हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एसिलेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन क्रिटिकल प्रोजेक्ट बाय 2024 एज सच एज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और मल्टी ट्रैकिंग कंजेस्टेड रूट, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड 1 to 160 किलोमीटर पर आवर,
Delhi Howrah and Delhi Mumbai routes, upgradation of speed to 130 km on the all other golden quadrilateral diagonal. एलिमिनेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग जो आपका होता है, जो आप जब घुमटी जो बोलते हैं जो गिर जाता है, तो उस चीज को हटाना है, वहां से आरयूबी बनाकर उसको हम लोग साइड कर देंगे. आइडेंटिफाई न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, आइडेंटिफाई न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, assess rolling stock requirement for passenger traffic as well as wagon requirement for freight. यहाँ देख सकते हैं 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ टोटल लेंथ 3750 किलोमीटर कॉस्टिंग 39,000 crore अप्रॉक्स. 68 critical project total 6,000 around 7,000 kilometer costing 75,000 have been identified for completion by 2024. This information was given by Minister of Railway. तो ये है हमारा टोटल आपका नेशनल रेल विजन प्लान 2030. तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है रेयर अर्थ मिनरल. India's reliance on China for rare earth minerals import. The Confederation of Indian Industry has urged the government to encourage private mining in the sector and diversify supply sources. So the India has 6%. कितना है सिर्फ इंडिया में 6% of world rare earth reserve. इंडिया में काफी कम है, 6% ही है. It only produces 1% of global output. और हम लोग सिर्फ माइन कर रहे हैं 1% and meet most of requirements source such minerals from China. So in 1819, for instance, 92% of earth metals imported by value and 97 by quantity were sourced from China. So rare earth metals क्या है? They are set of 17 metallic element. These include 15 lanthides on the periodic table, in addition to scandium and yttrium that show similar physical and chemical properties to the lanthanides. ये है हमारे 17 रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि देखिए सीरियम है, डाइस्प्रोजियम है, इर्बियम, यूरोपियम, देखिए लिथियम, स्कैंडियम, टेर्बियम, टूलियम, यूट्रियम, वाई, जीडी, हॉलियम. तो ये आपका लेंथ जो हम लोग का है लेंथनाइड सीरीज होता है, पीरियोडिक टेबल में आप नीचे देखेंगे लेंथनाइड्स, तो वो आपका आता है रेयर अर्थ मिनरल्स में. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि these minerals have unique magnetic, luminescent चमकने जैसा electrochemical properties and thus are used in making modern technology including consumer electrics, computers, networks, communication, healthcare, national defense, clean energy technology. तो अभी के दिनों में ज़्यादा इसका यूज बढ़ चुका है. इवन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी नीड these RE, for example high temperature superconductivity, safe storage, transport of hydrogen for post hydrocarbon economy. They are called rare earth because earlier it was difficult to extract them from their oxides form technology. So they occur in many minerals, but they typically in low in concentration to be refined and in economic manner. तो चाइना ने हमें यहाँ पे देखिए मोनोपोलाइज कर चुका है रेयर अर्थ को, क्योंकि 90% ऑफ अर्थ आर जो है इट प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ से चाइना से. तो सब कोई चाइना पे ही डिपेंडेंट है. इवन अमेरिका इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चाइना. देखिए सिंस 2010 when China curbed shipment of rare earth to Japan, the US and Europe, production unit have come up in Australia, the US along with smaller units in Asia, Africa and Latin America. Even so, dominant share of processed rare earth lies in China. देखिए इंडिया का क्या है करंट पॉलिसी ऑन रेयर अर्थ. तो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है ग्रांटेड गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सच एज IREL a monopoly over the primary mineral. Focus is provide thorium extracted from monazite to Department of Atomic Energy. तो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनर भी बनाया गया यूएस, इसी के लिए इन्वॉल्व पार्टनरशिप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया. इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड. इंडिया अब इंक्लूड हो चुका हुआ है एक्चुअली. सो वी आर एट ऑफिशियल साइट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL. और ये क्या है? महारत्न CPSE, महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. और इसी का क्रिएशन है ये डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट सिविलियन यूज के लिए. देखते हैं यहाँ HAL का लोगो है DO228. ये है हमारा फ्लाइट. देखिए काफी खूबसूरत है, बढ़िया. एंड ये देख सकते हैं डिफरेंट रोल्स. ये इसका पावर प्लांट है. ये परफॉर्मेंस समरी देख सकते हैं, टिपिकल परफॉर्मेंस सर्टिफिकेशन. ये देखिए डॉर्नियर 228 प्रोडक्शन यूनिट कानपुर में रखा गया है. इस नीचे देखिए हाउ मेनी डॉर्नियर 228 इंडिया हैज. इंजीनियर फोर्स के पास 61 है, नेवी के पास 29 है एंड कोस्ट गार्ड के पास 36 है. सो ये है IL-76 एयरक्राफ्ट और ये शायद रसिया का है, पर इंडिया भी इसे अपने पास रखा है. सो अब इस टॉपिक पे आते हैं. ये है C-17 ग्लोब मास्टर. डज इंडिया हैव? यस, इंडिया हैव एंड इंडिया ऑपरेट्स 11
this C-17 Globemaster. Actually this belongs to USA और काफी ये सुंदर लगता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो Boeing 6 C-17 Globemaster 3 is a large military transport aircraft designed to transport troops, equipment and supplies over long distance. It is used by United States Air Force and other countries around the world. तो इसे देखिए, ये है हमारा C-17 Globemaster 3 इंडियन एयरफोर्स का, और काफी बल्कि लग रहा है कि हाँ ये कुछ एयरक्राफ्ट है। इसका देख रहे ये बनावट यहाँ से, ये देखिए ये कितना वाइड है, और ये यूज होता है कैरीज सप्लाईज फॉर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, जैसे कि ये क्वेश्चन था रियर अर्थ एलिमेंट्स का। फिर डॉर्नियर 228 जो मैरीटाइम पेट्रोल में देखा हम लोगों ने। ये देखिए सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये नहीं था, ये रसिया का था। ग्लोमास्टर देखा हम लोग, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। एंड यहाँ देखिए नेशनल रेल प्लान 2028 यहाँ लिखा है, एक्चुअली ये 2030 का प्लान है। और कवच ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप बाई कोलैबोरेशन जर्मनी, तो ऐसा नहीं है, ये RFID वाला है, तो हम लोग उस पर भी आएंगे। यहाँ देखिए ये हम लोगों ने एक्सियम 4 इसमें देखा, स्पेसडेक्स देखा, गगनयान देखा, और ये सारा कुछ क्या है माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च के लिए ही बनाया हुआ है। और स्पेशली गगनयान इंडियाज फर्स्ट एंडेवर टू सेंड क्रू मिशन, ह्यूमन क्रू मिशन, और हम लोग देखा HLV-M3 पेलोड के थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू हम लोग भेजेंगे। ये सारा माइक्रो ग्रेविटी के लिए है। एक्सियम 4 इसी के लिए एक्सियम 4 है, और स्पेसडेक्स भी इसी के रिलेटेड है। और स्पेसडेक्स क्या था कि हम लोग जो स्पेस डॉकिंग, जो डॉकिंग सिस्टम है, तो उसके लिए था। तो अभी के लिए इतना ही। वी विल कम अप विथ अनदर वीडियो।